just to set the context, because many of us don't know each other personally, and we have never met, Dr. Batra and Dr. Geeta and all. Ma'am, आपसे भी बहुत समय पहले मुलाकात हुई है, and I don't think that you even remember me by face. So my name is Vivek Sharma. I'm a social entrepreneur, and I work. I run a company called Uhapo Health Services. It's a social enterprise, and the objective, the idea is to create an ecosystem for cancer patients and caregivers across the country, irrespective of the cancer. Though we are working in specific cancers as well, but the idea is to reach out to larger population and help them in whatever possible way we can and they require. So our work includes awareness at school, college, corporate level, hospital level, and community level, providing access to the treatment through navigation through our cancer care survivors, cancer care coaches on ground, and navigating them for their all the physical, emotional, social, and financial challenges. We raise funds for them. We provide wigs, prosthesis, and even we run a matrimony platform for young survivors. We help them place for job placements and other things. Apart from that, we are running and supporting a couple of support groups in lung cancer, head and neck cancer, and we wish to do more. And sorry, I forgot to mention bladder cancer. That is one of them. So that's how Uhapo is placed, and we have our mentors, our supporters, and we have close to 5,000 cancer patients associated in some or the other way. And the matrimony platform that we talk about is not specific to cancer. So it's like for any patient or any survivor of any disease. So that's in nutshell about Uhapo. And now I think we should start now. So just to kind of set the context, because October is Breast Cancer Awareness Month, and we see a lot of things happening across the globe. Probably it is one of the cancers that has got better prognosis or best prognosis. I don't know that, but we have medicos over here. They can enlighten us on that. When it comes to breast cancer, जहाँ एक तरफ जो सर्वाइवल है वो काफी बढ़ा है पहले से, जहाँ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, वहीं नए नए चैलेंजेस भी आते जा रहे हैं. एंड अभी जैसे in last 1 month I have come across 3 patients जो less than 30 years of age हैं, and they are all of them are triple negative breast cancers. एंड ये सिनेरियो जो है, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, इट मे बी अ कोइंसिडेंस आल्सो. वी नीड टू प्रोबब्ली वैलिडेट विद आवर oncologist over here. So to start with, let us come to Dr. Geeta, because she's a surgeon, and मुझे लगता है कि अर्ली स्टेज में जो है कैंसर पेशेंट्स काफी बार जो है सर्जन्स के पास जाते हैं. तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो डिसीज का अवेयरनेस लेवल है, और मतलब क्योंकि देखिए पहले जो ऐसा है, अगर हम इंदिरा जी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब काफी पुराने काफी एक्सपीरियंस्ड हैं आप. जब 30 साल 35 साल पहले जब हम बात करते थे कैंसर की, तो बड़ी एम्बिग्यूटी थी, लेकिन आज कुछ ना कुछ चीजें जो है थोड़ी बेटर हुई हैं और लोग समझना शुरू किए हैं एटलीस्ट. सो आज डॉक्टर गीता हमें बताइए कि ये जो डिसीज अवेयरनेस का जो लेवल है, ये अर्ली डिटेक्शन की जो हम बात करते हैं, कितना गैप है? मतलब क्या आज चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं, या आपको लगता है कि अभी बहुत नेसेंट लेवल पे हैं हम लोग, चाहे वो कंपैरिजन टू वेस्ट हो या अदरवाइज हमारा ही खुद का कंपटीशन हो या कंपैरिजन हो ओवर द लास्ट डिकेड और समथिंग? तो अगर अवेयरनेस की बात करें, मैं कहूँगी जो अभी 20 साल पहले था ना, उससे तो कहीं बेहतर है. और इट इज गेटिंग बेटर ऑल्सो. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट जॉइन थ्रू द लैपटॉप, इट इज इजियर देन. सॉरी. Okay, we'll connect. Okay, got it. Now I can leave this. Sorry. Yeah. आप म्यूट पे हैं डॉक्टर साहब. हाँ. तो जागरूकता जो है वो पहले से तो बढ़ गई है, और लोग बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जो बहुत कमिटेड हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है, आई से दैट इट इज स्टिल अ ड्रॉप इन द ओशन.
मेरे को लगता है अभी भी बहुत हमें मेहनत करनी है, क्योंकि अभी भी क्या है कि 50 to 60% of our cancers, breast cancers, are still locally advanced और metastatic setting में आते हैं। तो हमें ये जो कोशिश करनी है ना, देखिए हम हर चीज पे ना जो वेस्ट में लागू होता है वो हम पर नहीं लागू होता। अगर वहां पर बहुत सॉलिड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है जिसके लिए वो पीछे पड़ के मरीज से अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं। सपोज अगर आप मैमोग्राम नहीं कराओगे तो आपको ना दे स्ट्राइक यू ऑफ दी जीपी लिस्ट, ये सब चीजें ऐसी सी धमकियां जाती है, तब जाके वो उनका हर साल होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं ना। तो जहां पर ऐसा है नहीं और जिसकी होने की संभावना बहुत कम है, कि आपको लग रहा है कि अगर हर महिला जो है जो 50 साल से ऊपर हो या 45 साल से ऊपर हो वो जाके हर साल मैमोग्राम करेंगी और हम तब कैंसर पकड़ेंगे जल्दी, तो ये तो नहीं होने वाला, बहुत जल्दी तो नहीं होने वाला। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम इसको जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए स्टेज 4 को लाके अगर हम स्टेज 2 पे ले आए और स्टेज 3 को अगर हम स्टेज 1 पे ले आए तो हमने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया होगा। तो मेरे को यही लगता है कि जितना हम कर रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। मेरे को हमेशा लगता है कि जो हमारा एडवोकेसी है ना वो बहुत ही डिसजॉइंटेड है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें एकजुट होकर एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिसको इन इन दी यूआईसीसी आप जानते हैं ना, जो यूनियन ऑफ कैंसर है दुनिया भर का, मतलब दुनिया में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहते हैं कि देयर हैज टू बी अ कैंसर कोलिशन। We have an Indian Cancer Society, we have a cancer support, we have Yes to Life, we have Bliss Foundation, we have Yodhas. But come to think of it, if they were all to come together and form a coalition and get all, more doctors on board and more, like-minded people on board, so we will be able to achieve much, much more. तो मुझे लगता है भी बहुत काम बाकी है। जी, सो मुद्दे की बात यह है कि अभी भी हम बहुत पिछड़े हैं कंपेयर टू अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग। हमारे साथ इंदिरा जी हैं जो खुद एक वेटरन है, एक सर्वाइवर हैं, और मतलब ये टेबल के दोनों साइड इन्होंने काम किया है। एंड मैम जो है एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो मैम हमें ये बताइए कि जब आपने जब भी जब आपका डिटेक्शन हुआ था तो आपकी जर्नी क्या थी? क्योंकि देखिए जो हमें समझ में आता है कि कैंसर जो है एक बड़े मतलब एक अम्ब्रेला है। ये हमें फिजिकली भी परेशान करता है, मेंटली भी परेशान करता है, सोशली भी परेशान करता है, और फाइनेंशियली तो करता ही करता है। और उस समय में और आज, क्योंकि आप एक एनजीओ रन करती हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, कई सारे अस्पतालों में जाते हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि उस समय की जर्नी में और आज की जर्नी में कितना बदलाव आया है? पहले तो हमें अपनी जर्नी बताइए, सो दैट जो लोग व्यूअर्स जो हमें हमारे साथ जुड़ेंगे वो जान पाए कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मेरी जर्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टू टेल यू द ट्रूथ। इट वाज अ वेरी सिंपल जर्नी, क्योंकि मैं थोड़ी अवेयर थी। आज से 26 years बैक व्हेन आई गॉट ब्रेस्ट कैंसर, तो मेरे को अपने आप को ही, जब मेरे को थोड़ा सा एक दिन रात को थोड़ी सी पेन हुई, तो मैंने जब हाथ लगाया तो देयर वाज अ हार्ड लम्प। क्योंकि मैं अवेयर थी तो मैंने सोचा कि ये तो जरूर कैंसर ही है। तो मैंने 2 दिन भी वेट नहीं किया। मैं अपने बच्चों के पास छुट्टी के लिए, मेरे हस्बैंड और हम दोनों छुट्टी बैंगलोर गए हुए थे, तो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से कहा कि मेरे को गायनी को दिखाना है। तो वो कहने लगे, मामा यू हैड हिस्टेरेक्टमी डन, व्हाई डू यू वांट टू गो? तो मैंने कहा नहीं, मेरे समथिंग इज रॉन्ग विद मी। आई डिडंट टेल देम व्हाट एग्जैक्टली वाज रॉन्ग। तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उसी वक्त बायोप्सी, उसी दिन बायोप्सी होगी, उसी दिन ही सब कुछ हो गया। एंड इट टोल्ड मी, आई न्यू इट वाज कैंसर। ऑफ कोर्स एंजाइटी थी थोड़ी सी, पर मैं तो इस चीज में बिलीव करती हूँ कि सरा जो होना है वो होके रहेगा। आप अगर अपना एटीट्यूड रो रो के खत्म करोगे अपने को, तो वो बात फर्क है। और वही आप सोचोगे कि तो होना ही है, तो काहे के लिए सोचना। डॉक्टर में फेथ रखो। आई हैड फेथ इन गॉड, आई हैड फेथ इन डॉक्टर। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा लंपेक्टमी होगी। उस वक्त लंपेक्टमी बहुत मतलब नई नई चीज थी। बस मैंने तो कहा कि देखो बहुत ही अच्छा हो गया, पॉजिटिविटी इतनी, सिर्फ मेरी ब्रेस्ट भी रिमूव नहीं होगी, उतना लंप निकालेंगे। एंड यू नो it was, I was detected on Saturday. Wednesday my operation took place. They took out 17 nodes out of my armpit, and लंपेक्टमी हुई। उसके बाद आप हैरान होंगे, मेरे को ना तो उन्होंने कीमो दी, खाली रेडिएशन दी। उन्होंने कहा नो नीड फॉर कीमो, आपके सामने मैं बैठी हूँ। और मेरी जर्नी यही, मैं सबको यही कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को डिटेक्ट किया। अब देखिए मैं किन चीजों से बची। मेरी पूरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं हुई,
खाली उतना हिस्सा रिमूव किया, और क्योंकि फर्स्ट स्टेजेस में पढ़ रही मैं आपके सामने बैठी हूँ 26 साल के बाद। दैट इज माई जर्नी। दैट्स रियली अमेजिंग एंड ये प्रोबब्ली एक मैसेज है उन सारे लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं या देखेंगे कि भाई अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो ये नतीजे देखने को हमें मिल सकते हैं, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैम पर्दे के पीछे साइड है ना, लाइक अभी जैसे आप एनजीओ का जो आपका रोल है, आज अभी हम डॉक्टर गीता से जो बात कर रहे थे कि सी वाज आल्सो रिकमेंडिंग और काइंड ऑफ रीइटरेटिंग कि अभी भी हम उतने अवेयर नहीं है एज अ समाज, एज अ सोसाइटी। तो आज आपको क्या लगता है कि कितना मिथ है या कितना गैप है इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉमन पब्लिक में, एंड स्पेशली वो जो शायद मेट्रोज में नहीं रहते हैं या टीयर 2 या टीयर 3 से आते हैं, बिकॉज यू रीच आउट टू ऑल द पीपल। मेरे को लगता है कि आगे से तो बहुत जागरूकता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एनजीओ जो है वो अवेयरनेस के ऊपर बहुत स्ट्रेस डाल रहा है। अच्छा, इतना भी नहीं है, मुफ्ती में जाके डिटेक्शन, जब हमारी बैंस जाते हैं, कैंप्स होते हैं, तो लोग गाते हैं। सिर्फ ये बात है कि वॉलंटियर्स को जाके पहले बताना पड़ता है। कॉरपोरेट्स में भी अब CSR जो है उसमें भी लोग दे रहे हैं, तो इसका मतलब अवेयरनेस है ना। हम बस्तियों में जाते हैं, वहां भी लोग इकट्ठे होते हैं। तो आई थिंक देर इज अ गैप, but the gap is not as big as it used to be. Awareness is taking place, it is having an effect. तो इतनी बड़ी हमारी एक हरकत है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम कहते हैं क्यों, हम सोचते रहते हैं कि हमने सबको करना है। हम अगर 2 आदमियों को भी अवेयर करते हैं, वो 2 आदमी मैसेज 2 को और देते हैं, और वो आगे 2 को और देते हैं, तो इस तरह से ही अवेयरनेस फैलती है। तो आई थिंक द गैप इज क्लोजिंग, and I am very, very hopeful that there will be a time when people will come for their, you know, to अपने एग्जामिनेशन कराने आएंगे, डिटेक्शन कराने आएंगे। तो that is what I may, perhaps I'm very, very positive, that's all. and you said it ma'am, because कैसा है कि I have a little mixed feeling because I run an NGO, I also go to corporates for awareness and other things, and जो हमारा अनुभव है, maybe it could be because of Delhi being more I would accessible to a lot of things, ऑफ कोर्स, बट बॉम्बे में भी जहाँ पे हमने कई सारे जगहों पे जब हमने स्क्रीनिंग कैंप कराने की कोशिश करी तो बड़ा सारा इनहिबिशन होता है लोगों में, women don't turn out, and आते भी तो बहुत लोग एक दूसरे को rather than encouraging them, kind of they demotivate कि अरे छोड़ो जाने दो, इससे कुछ नहीं होता है, kind of thing. And plus there are other challenges, so उन challenges की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है ये आपने बड़ी important बात कही कि जो सिचुएशन है पहले से बेहतर हुई है, एंड ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। लेट अस गो टू डॉक्टर अतुल बत्रा। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जब भी एक तो पहलू होता है अर्ली डिटेक्शन का, भाई जैसे मैम हमारे सामने बड़ी एक एग्जांपल रोल मॉडल है कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो किस तरह की लाइफ स्टाइल एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जी सकता है, कितने सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है, अपनी बॉडी पे भी हार्म नहीं होता है। लेकिन दूसरे ही साइड हमारे यहाँ देखिए इग्नोरेंस तो है, एंड यू बीइंग अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशली इन द सेटअप लाइक एम्स एंड ऑल, आप तो देखते ही होंगे कि कितना लेट, और rather let me validate it with you. Do you really see that late onset of detection of breast cancer in our society still? And अगर है तो कितना बदलाव आया है और क्या प्रोग्नोसिस है, क्या आपको लगता है कि कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? तो एडवांस केस तो हम देखते हैं, मतलब काफ़ी कॉमनली देखते हैं। आई वुड से कि हम लोग सारा रोज़ पिक्चर पेंट नहीं करेंगे, व्हाट इज़ रियलिटी हमारे पास आता भी है। थोड़ा टर्शरी केयर बायस भी होता है, रेफरल बायस है कि बड़े हॉस्पिटल्स में जनरली थोड़ा एडवांस्ड होता है। जो एरिया हम एम्स केटर करता है वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा है वहाँ पे अवेयरनेस कम है, तो हम एडवांस डिजीज़ काफ़ी कॉमनली अभी भी देखते हैं। काफ़ी बार इतना मतलब ऑब्वियस होता है कि यू कैन मेक आउट फ्रॉम ऑलमोस्ट 5-6 मीटर्स दैट इस पेशेंट को ब्रेस्ट लंप नहीं है, पूरा लंप दूर से ही दिख रहा है। इतना मतलब कि दे आर वेयरिंग साड़ी एंड उसके ऊपर हाथ ऐसे रख के आ रहा है, उतना तक भी आते हैं। Having said that, एक बहुत मिक्स पॉपुलेशन में जीते हैं हम कहीं पे भी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। वैसे ही हमारा कल्चरली सारा कुछ अलग है, सबके बिलीफ, सबका सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, इट हैज अ ह्यूज वैरायटी। तो ऑन वन साइड वी आल्सो सी पेशेंट्स जिनका मैमोग्राम में देयर इज बेयरली एक 5 mm का ट्यूमर है जिसको हमें डायग्नोस करने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो उसमें से बायोप्सी नहीं निकल पा रही है।
ऑन दी अदर हैंड उतना एडवांस है। तो अब जो एडवांसेस हुए हैं ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो काफी एडवांसेस हुए हैं, लेट स्टेज में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है ना। बहुत सारा कीमोथेरेपी नया आया, बहुत सारा टारगेटेड थेरेपी आया, इम्यूनोथेरेपी पे रिसर्च कर रहे हैं, बट ये सारी रिसर्च, ये सारी डेवलपमेंट्स कभी भी उतना हम लोग नहीं कह सकते हैं कि क्या हम वो कवर कर सकते हैं लेट स्टेज पे डायग्नोज हुआ हुआ और विजाविज जो अर्ली स्टेज पे हुआ है। वन, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ट्रीटमेंट दैट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स, द कॉस्ट दैट आई थिंक इज अ लेटर एजेंडा फॉर डिस्कशन, एंड ऑल्सो द आउटकम्स इवन देन आर नोवेयर कंपेरेबल, है ना। जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो उसमें सब कुछ आ जाता है, फिर कीमोथेरेपी आ जाएगा, टारगेटेड थेरेपी अगर कुछ टारगेट्स हैं तो उसमें आ जाएगा, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इट इज अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। जो एवरेज जर्नी रहती है वो अराउंड 6 to 9 months ऑलमोस्ट कंटिन्यूस ट्रीटमेंट रहता है, उसके बाद अगर खाने का है तो वो चलता है, तो इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल विच गोज ऑन। एंड स्टेज 4 में ऑलमोस्ट वैसा रहता है कि यू आर ऑलवेज ऑन अ ट्रीटमेंट। हालांकि बहुत प्रोग्रेस हुआ है इफ वी कंपेयर पेशेंट्स which were treated earlier, आज के टाइम पे हमारे पास स्टेज 4 पेशेंट्स हैं who have been doing well for last 10 years, last 8 years, है ना। बट दैट शुड नॉट बी द मोटो ऑफ आवर डिस्कशन नाउ दैट कि हाँ स्टेज 4 का ट्रीटमेंट भी हो जाता है तो चलो कोई बात नहीं, वी विल बी टेकन केयर ऑफ। नहीं, जो चीज हम अर्ली में कर सकते हैं वो हम लेट में कभी नहीं कर पाएंगे। हमें जनरल पब्लिक में पहुंचना ही पहुंचना, और हमें ऑप्टिमिस्टिक तो रहना ही पड़ेगा। हमने पोलियो को खत्म किया है, हमने बाकी स्मॉल पॉक्स भी वर्ल्ड वाइड खत्म हुआ है, तो ये हम मान के चलें कि ब्रेस्ट कैंसर खत्म तो नहीं होगा, बट हम स्टेज 4 को खत्म कर सकते हैं, हम लोग कम से कम कर सकते हैं मिनिमल। और अवेयरनेस तो की है ही। हम लोग ऐसे पेशेंट में अक्सर देखोगे ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं होता है कि लंप है। पेशेंट आता है 2 साल से लंप है, 3 साल से लंप है, अब क्या हुआ, क्यों नहीं दिखाया, व्हाट आर द बैरियर्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज। काफी बार और कुछ और तरह के इलाज भी चल रहे होते हैं, कुछ कुछ दिखा भी रहे होते हैं, कुछ नहीं दिखा रहे होते हैं, तो वो एक डर है सोसाइटी में, मालूम नहीं है कि इट इज क्योरेबल। काफी लोग ये भी सोचते हैं कि अगर एक बार लंप आ गया तो इट इज काइंड ऑफ हो गया, मतलब लाइफ इज डन विद। तो वो सारे हमें मिथ्स और वो सारे चैलेंजेस तो फेस करने, एंड इट विल नॉट बी बिल्ट इन वन डे, है ना। ये तो कंटिन्यूअस बैटल है, वो हम सारे मिलके करते रहेंगे। जैसा मैम ने कहा है कि वो सारे हम लोग थोड़ा पैची पैची तरीके से कर रहे हैं, तो टाइम टू गेट टुगेदर, मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड, एंड डेफिनेटली वी कैन गेट ओवर इट। बहुत बड़ी बड़ी चीजों से निकल जाते हैं, ये भी हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और बहुत सही जो आई वुड से कैच लाइन जो है आपने वो कैच करी है, वो है कोलिशन वाली जो गीता मैम ने शुरुआत करी थी। एंड जब हम कोलिशन की बात करते हैं तो भाई इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, ये दो चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके सपोर्ट के बिना लार्जर लेवल पे कुछ भी करना जो है वो, मुझे ऐसा लगता है, मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉसिबल नहीं होता है। हमारे साथ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से उर्वशी जी हैं। उर्वशी जी नमस्कार। और मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं उर्वशी जी का। सी इज डायरेक्टर एट नीति आयोग, एंड बहुत सारा काम इन्होंने करा है पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी, in terms of kind of moderating or kind of laying off policies, especially for cancer, because I don't know, I mean, if you, Ruchi ji, would you like to share about your experience with cancer? हाँ, मतलब आप कर सकते हैं या Okay. So just to share with you all, she has got, she's an active patient of ALK positive lung cancer, and she has been, I know her personally, and I have seen her immense spirit in fighting against the disease. And at the same time, कैसा होता है कि कई बार हम जब परेशानी में होते हैं तो हम अपनी परेशानियों पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट शी इज वन ऑफ द पर्संस आई हैव मेट दैट ये अपनी परेशानियों के साथ साथ दूसरों की परेशानियों पे भी बहुत फोकस करती हैं, and we together are doing a lot of work, and I hope that we'll be able to shape up further. Now coming back to the policy part, उर्वशी जी, आपको क्या लगता है कि मतलब, हालांकि हमारी इस बारे में काफी बात होती है और कभी कभी जो है हॉट टॉक्स भी होती है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे काम कर रही हैं, क्या मैकेनिज्म है। आपने बहुत सारा काम किया है अभी, लाइक जो आयुष्मान भारत की जो एलिजिबिलिटी थी वो 2.5 लाख से अभी 5 लाख हो गई है कई जगहों पे। इम्प्लीमेंटेशन अब जो है थोड़ा बेटर हो गया है। आपको क्या लगता है कि अभी कितने गैप्स हैं, कितने रोड ब्लॉक्स हैं, और कैसे हम उनको ओवरऑल एड्रेस कर पाएंगे? हाँ, अब थैंक यू विवेक जी। मतलब गैप्स तो ऑफ कोर्स बहुत हैं, बिकॉज हमारा स्केल ही इतना है। आई थिंक सबसे बड़ा हमारा वही चैलेंज रहता है हमारी कंट्री में। कोई भी आप हेल्थ इशू देख लीजिए
तो चैलेंज सबसे बड़ा स्केल ही है हमारे लिए, क्योंकि स्केल पे इतना डील नहीं करना होता तो इम्प्लीमेंटेशन भी सुधारना बेटर होता। लेकिन जब इतना डाइवर्स एक फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज हैं, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी आती ही है। तो ये इसका तो कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन जो हमें फोकस करना है, और अब कोशिश भी कर रहे हैं कि पॉलिसी स्पेस में वो फोकस हम लाएं। एक तो ये डेफिनेटली है कि वो चर्चा भी हुई है कि कैंसर हो या कोई भी और क्रॉनिक, जैसे आप इस तरह की डिजीज देखेंगे या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखेंगे, तो मतलब प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन ट्राइंग टू ट्रीट stage 4 or trying to cure. So that is something well established. And breast cancer में तो वो opportunity भी आपको काफी हद तक मिलती है अगर आप उस तरह की एक तरह से रेगुलर स्क्रीनिंग आप कर पाए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम ही अगर आप कर पाए, वो ही अगर हम विमेन को स्केल पे बता दें कि भाई इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और जो हाई रिस्क विमेन हैं उनका तो खैर हम और सिस्टमैटिकली और अर्ली एज से स्क्रीनिंग करें तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम जल्दी पकड़ सकते हैं इस बीमारी को। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फोकस होना है उस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे। तो वही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें हम टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत से इनोवेशंस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से लिंक्ड, और काफी लो कॉस्ट इनोवेशंस भी हो रहे हैं। हमारे ही स्टार्टअप्स कर रहे हैं, हमारे ही इनोवेटर्स कर रहे हैं कि भाई आप बहुत सिंपल, आपकी ये टेक्नोलॉजी है, आप इसी से स्क्रीन कर सकते हैं विमेन को। तो वो हम उस तरह की चीजों को देख रहे हैं कि उनको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। बिकॉज इट्स वेरी क्लियर कि मेजॉरिटी को हमें अगर हम प्रिवेंट ना कर सकें, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन पे तो बहुत फोकस होना ही चाहिए, बट दैट इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू ब्रेस्ट कैंसर, बट इन जनरल प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप प्रिवेंट ना कर पाए तो ऑब्वियसली नेक्स्ट बेस्ट इज अर्ली डिटेक्शन, सो उस पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। बट देन आई वुड ऑल्सो से कि ऑन द ट्रीटमेंट साइड, मतलब आपने मेंशन किया आयुष्मान भारत, तो ऑफ कोर्स हम लोग उसमें कंटिन्यूअली वी ट्राई टू ब्रिंग इन इम्प्रूवमेंट्स कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को सुधारें, उसका जो पैकेज है उसको बेटर करें। क्योंकि ये हर कैंसर के, मतलब कोई भी टाइप का कैंसर हो, हम यही बात डिस्कस करते हैं कि सम ट्रीटमेंट्स आर नॉट कवर्ड, या कुछ जो कटिंग एज ट्रीटमेंट्स होते हैं या इम्यूनोथेरेपीज होती हैं वो नहीं कवर होती हैं, या टारगेटेड थेरेपीज हैं जैसे मैं खुद लेती हूँ। मैं खुद एक टारगेटेड थेरेपी लेती हूँ जो ऑब्वियसली मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कहीं उस तरह से कवर नहीं होती अभी। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो पैकेजेस को हम इम्प्रूव करें। बिकॉज ऑब्वियसली मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आप देखिए कुछ भी नहीं था, फिर अब हम कम से कम कुछ लेकर आए हैं एक लेवल पे। अब यही सोच रहे हैं कि ठीक है अब नेक्स्ट लेवल पे उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। लेकिन अगेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी सेंटर एंड स्टेट की ही है, क्योंकि सेंटर कुछ ला सकता है लेकिन उसमें जब तक स्टेट का उतना ही एक्टिव सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट ना हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा वो अधूरा ही रहता है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम लोग अभी नीति आयोग में भी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, स्टेट सपोर्ट मिशन। तो इसमें हम अलग अलग स्टेट्स के साथ काम कर रहे हैं कि आपको अलग अलग सेक्टर्स में मदद करना, और हेल्थ भी ऑब्वियसली एक सेक्टर है उसमें। एनसीडी, कैंसर बहुत बड़ा एक एरिया है। तो किस स्टेट की हम कैपेसिटी कैसे इन सब एरियाज में सुधार सकें। तो उर्वशी जी आपका शायद म्यूट पे चला गया। हाँ, यस। तो वही मैं कहूंगी कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, मतलब नॉट जस्ट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट बट ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग,
मतलब क्योंकि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अब जरूरी तो नहीं है कि कोई हर समय स्पेशलिस्ट के पास ही जाएगा। जो जो हो सकता है कि भाई कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया, कोई अपने जनरल फिजिशियन के पास गया और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एटलीस्ट देयर शुड बी सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स कि आप ऐसी इशू को कम से कम पिकअप तो कर पाए कि अगर किसी का कोई सिम्टम हो रहा है, कोई साइन हो रहा है, ऐसा है जो आपको कुछ गड़बड़ लग रही है कि इस पर्सन की फर्दर स्क्रीनिंग या टेस्टिंग होनी चाहिए या इनको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो आप उस तरह का रेफरल कर पाए। तो वो ट्रेनिंग भी हम अलग अलग कार्डर्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर समय कोई स्पेशलिस्ट के पास जाता नहीं। स्पेशलिस्ट तो वैसे भी हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह से उनका। तो हमें अपने बाकी हेल्थ कार्डर्स को भी मजबूत करना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक तरह से जो हमारा एम्फेसिस है पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पे भी है। जी, ये काफ़ी एक्चुअली इम्पोर्टेंट बात थी जिसे आपने बताया कि जो स्केल, जिस एलिफेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लाइक मदद लगेगी। और फॉर्चुनेटली वी हैव somebody फ्रॉम इंडस्ट्री आल्सो। डॉक्टर ईशान पटेल इज अवेलेबल विद अस फ्रॉम फाइजर। एंड जो हम फाइजर को जानते हैं, इट हैज़ बीन अ वेरी compassionate ऑर्गेनाइजेशन सिंस एजेस। एंड डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि दो दो एस्पेक्ट जो है मुझे इस पैनल डिस्कशन से समझ में आ रहे हैं। एक तो जो जैसे उर्वशी जी ने बताया कि फिजिशियन जो अर्ली रेफरल वाली जो बात है, बिकॉज योर्स और लाइक फार्मा इंडस्ट्री अगर हम देखेंगे तो अदरवाइज लाइक वो स्पेशलिस्ट तक भी पहुंचते हैं और नॉन स्पेशलिस्ट तक भी पहुंचते हैं। इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी वर्कड आउट वी शुड लुक अपॉन? दूसरा जो होता है, जब भी इंडस्ट्री की तरफ लोग देखते हैं, चाहे वो अभी जैसे इंश्योरेंस हो या फार्मा कंपनी हो या हॉस्पिटल हो, एवरीबडी इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग एट ईदर एट लो कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक जनरल परसेप्शन है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितना कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से अभी हुआ है फॉर द एक्सेस टू द ड्रग्स एट इकोनॉमिकल प्राइसेस? देखिए, इकोनॉमी की तो मतलब कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती भाई। समथिंग दैट इज अफोर्डेबल बाय मी मे नॉट बी अफोर्डेबल बाय द नेक्स्ट डोर। बट ओवरऑल अगर इन जनरल अगर पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो क्या अभी तक आई वुड से ट्रैवल डिस्टेंस जो है हमने ट्रैवल किया है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Yeah. Thank you so much, Vivek ji. I think both are very important question. So I'll take the first one about the referral. So which is a very critical piece because last year also we have done couple of market research survey, and what we also realized that time that the first point of contact for any patient, especially cancer like breast cancer, which is like a symptomatic cancer, right? Female can feel the lump. Uh, it's a general physician or the gynecologist. And out of, so that is their first referral point. And out of that, around 20% of those physicians are not able to suspect cancer. Of course, we cannot blame them because there are multiple reasons for lump as well, but they are not able to even suspect the cancer and ask for at least a mammography or see a breast surgeon to take it ahead. So that is a very important piece, and that is where even Dr. Geeta, Dr. Atul also said that we are getting 60 plus 60% and more than those patients are coming at stage 3 and stage 4. So वो early referral के लिए जनरल फिजिशियन और वी इन फाइजर कॉल इट एज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन, उनका एजुकेशन about the signs and symptom, or at least they can suspect the cancer, and they know that what is the right time to refer to a right specialty. अगर हम उतना awareness build करते हैं, that is a big step, right? So after getting those insights, we have initiated one project with Assam Cancer Care Foundation. It was an independent grant which was given. They have run this educational module program in a 7 state of Northeast, where they have opened, so they have used a digital platform. They have developed a module with the help of Tata Memorial Hospital, and they have run this program. And the focus was all the cancer. Of course, in the Northeast, head and neck and the oral cancers are more. But apart from that, the cervical, the breast, and lung, we have run an educational initiative to primary care physician, and we had around 780 plus physician who got enrolled, and it had like 28 modules.
where physician have completed those. There was some assessment, and then Assam Cancer Care Foundation has provided certification. Now, this is a one step. I would say this is still a small scale, because 700, when we talk about the GPs or consulting physician, it's a too small number, right? But I think this is a way forward, where, as Madam said, everybody has to come together and start having those initiative. I know, because we are talking to a lot of oncologists, they are also doing referral meeting where they are going and educating them. So maybe at a one will be able to work on that part. So I think this is a very important important aspects when it comes to India. Now first I'll talk about Pfizer. उर्वशी जी ने गवर्नमेंट का भी बताया. I'll talk briefly about the government initiative and probably what we can do as a next step. So Pfizer, we know we have like a patient assistance program, patient support program, and we provide a lot of financial option to patients. So sometime it's a financial like discounting. Sometime we also provide a lifetime support. I think Pfizer is the first company who provided like a lifetime support of medicine to a certain patient after certain stage, or maybe at a lower strata income patient जो बिल्कुल भी afford नहीं कर पाते, like below poverty line, where we decided that we will give a drug free of cost. Second, I think government, of course, a lot of schemes which are ongoing. Of course, Ayushman Bharat, some of the state-sponsored scheme. We have a Rashtriya Arogya Nidhi. So there are a lot of different schemes which are running. They have a different criterias, different approval system. What we also realize that cancer is a treatment, and Dr. Atul also touched upon. It has a multimodality treatment, so it's not only the one intervention which will be helpful to patient. So it's like a diagnosis, surgery, radiation, or chemotherapy, or some of the targeted therapy. So it's a continuum of care. And what we also realize, and I would quote that one paper which was published in July, which says that approximately like reimbursed patient. So patient is either reimbursed in any kind of a government scheme or any kind of a state-sponsored scheme. Uh, those reimbursed patient also spend 3.3 lakhs rupees per year out of pocket. And they have also highlighted some of the reasons that where do they spend this extra money. One, of course, the diagnosis, because before they reach to the diagnosis of cancer, there is a lot of expense which incurred and which is not covered. uh, so insurance covers either surgery or radiation. Sometimes oral chemotherapies are not covered. Some of the daycare expenses or the targeted therapy are not covered. That is where patients spend. So that is the second area where they are not able to cover. So uh, and all the different schemes have a different weightage. So again, I'll go back to Dr. Geeta Madam's point that everybody should come together. It should be a coalition so that we can increase the corpus. We understand that government has increased the corpus, but government also has a limitation. So how do we go ahead? What would be the next step? Would be the public-private partnership, like how government has done a special program for sickle cell, the National Sickle Cell Mission. Similarly, we should have an umbrella program for oncology, where everybody should come together. Like we have a PMJ, we have a RAN, we have a state sponsored, we have a ESI, we have railway, army. Why can't we put everything in a one umbrella? So the corpus also increase, reach also increase, and of course, as a Pfizer or maybe any private player, if you ask, they are also ready to join the hand and have a public-private partnership, have an umbrella program, so we can overcome all these challenges which are happening at a existing schemes, right? So that is where we see it's a next step if we want to really enhance the access and reach to the last patient sitting in a rural town. So I think that is what we think from the Pfizer perspective. Great. I think we are kind of moving in the right direction, because we are trying to address the issues as well as Indra ma'am also has suggested couple of things. Like one is that MBBS में ही हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं कैंसर के बारे में. That could be one very good thing. Probably Urvashi ji, it could be one thing that probably off the line we need to discuss and take your opinion and suggestion in that direction. And ICS is providing funds to patients who are not able to pay for their treatment. लेकिन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि जब हम बात करते हैं लाइक दो एस्पेक्ट होते हैं कैंसर के. एक तो होता है प्रिवेंशन और
अर्ली स्क्रीनिंग का, डायग्नोसिस का, दूसरा होता है ट्रीटमेंट का, एंड और अदर 3 होते हैं, तीसरा होता है रिहेबिलिटेशन का, बिकॉज वो भी आज एक बहुत बड़ा आई वुड से स्कोप बनता जा रहा है, बिकॉज लोग अब ठीक होने लगे हैं या बेटर होने लगे हैं, लंबा जीने लगे हैं। सो ये तीनों चीजों को अगर हम एक साथ में देखते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर गीता और डॉक्टर अतुल, एनी ऑफ यू टू एड्रेस ऑन दैट थिंग। एक बड़ा परसेप्शन सा या मिथ सा हमारे सोसाइटी में है, जब हम कई बार जाते हैं मैमोग्राफी स्क्रीनिंग के लिए, जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं वो तो उससे तो इसकी जरूरत नहीं है, इतना रेडिएशन देने की जरूरत नहीं है, बड़े सारे मिथ हैं। और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि लाइक हमारे जो एजुकेटेड क्राउड है, लाइक जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि भाई रेडिएशन है बट इतना बड़ा रेडिएशन नहीं है कि आपकी लाइफ जो है वो रिस्क पे आएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की जो चीजें हैं, आपको लगता है कि काश यार ये चीजें ना हो, मतलब हम एक तो बीमारी से लड़ रहे हैं, उससे मतलब जूझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ठीक करने की, और ऊपर से ये छोटे छोटे जो मिथ्स होते हैं जो कई बार लोगों को ट्रीटमेंट से दूर कर देते हैं, डायग्नोसिस से दूर कर देते हैं, रिहैब उनका प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें हैं जो आप फेस करते हो, आपको लगता है कि यार शायद इस पे काम करने की जरूरत है? देखिए, मिथ्स इज अ पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, क्योंकि ऐसे कई चीजें हैं जो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को लेकिन हमें लगता है रोजमर्रा की जिंदगी को भी अगर आप देखोगे, ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो सब अपने हिसाब से वी हैव अ लॉट ऑफ मिथ्स दैट वी डील विद ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो ये भी एक मिथ है तो कि अगर मैमोग्राम हो जाएगा तो रेडिएशन से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बायोप्सी तो फिर पूछो ही नहीं, बायोप्सी से तो इतनी ज्यादा परेशानी है। पर लोगों को ये समझना भी बहुत जरूरी है कि देखिए, हर कैंसर में हम बायोप्सी नहीं करते, हम नहीं कह रहे कि हर एक में करते हैं, लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप बायोप्सी नहीं करोगे तो आपकी माफिक इलाज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके बायोप्सी पर ही डिपेंडेंट है कि हम किस तरह का इलाज करेंगे। और डॉक्टर अतुल बत्रा आपको बताएंगे कि जो दवाइयां उन्होंने देनी है ना, वो आपके बायोप्सी पे डिपेंड करता है। आपके बायोप्सी हमें इतना, इट्स लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन पे हमने एक्ट करना है, नहीं तो आप उन दवाइयों से महरूम रह जाएंगे जो शायद आप पे काम करती, क्योंकि हमने तो बायोप्सी करी नहीं, हमने ऐसे इलाज करा लिया, तो उसका कोई लाभ नहीं होता आपको। तो ये मिथ है कि भाई बायोप्सी करने से बीमारी फैलती है, तो हम लोग तो काम करना बंद कर चुके होते अब तक, अगर ऐसा ही होता तो, कि बायोप्सी किया और फैल गया तो कहेंगे अरे डॉक्टर साहब के पास जाओ, वो सुई डालते हैं और फैल जाती है, इनके सारे मरीजों में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है। तो हमें इस मिथ को दूर करना है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू मेक अ कंफर्म डायग्नोसिस। यहाँ तक कि अब तो हम लोग FNAC से भी दूर हट गए हैं, हम लोग बायोप्सीज के लिए ही कहते हैं। तो ये तो एक चीज है। और जो आपने कहा कि देखिए, हमारी जिम्मेदारी ट्रीटमेंट करने तक पे नहीं खत्म होती, क्योंकि मरीज के बहुत सारे फियर्स होते हैं, और जो हमारी ट्रीटमेंट से कई ऐसी साइड इफेक्ट्स होती हैं, या कहिए कि जो इश्यूज होती है विद ट्रीटमेंट, जो चाहे तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो या सेक्सुअल इश्यूज हो, या देखो, जैसे हमने सर्जरी करी तो सर्जरी में लिम्फेडीमा हो गया। तो हमें ना होलिस्टिकली देखना है, क्योंकि मरीज भी अपनी जिंदगी उसी तरह जीना चाहता है जैसे कि आप जीना चाहते हैं। तो मेरे से अगर मरीज पूछता है कि भाई ये कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, तो मैं कहती हूँ नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से भी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ an alert to them that this has happened, but then there are a lot of things that they have to modify, but then it is our responsibility to ensure कि वो फिजियोथेरेपी हो रही है उनकी सर्जरी के बाद, टाइम से हो रही है और माफिक हो रही है, सही हो रही है। फिर हमें जैसे हम सपोर्ट ग्रुप्स करते हैं, सो आई रन अ सपोर्ट ग्रुप विच आई डू एवरी मंथ, एंड देयर इज अ सर्टेन थीम टू इट। तो वो चीजें जो हम लोग वैसे डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग सब अपने अपनी तरीके से, टाइम इज एट प्रीमियम, तो कई बार हम वो चीजें डिस्कस नहीं करते। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि चाहे वो सेक्सुअल इश्यूज हो, चाहे वो फर्टिलिटी इश्यूज हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, चाहे वो लिम्फेडीमा हो, चाहे वो स्किन इश्यूज हो, बाल, your skin, your nails, all of these are problems. अगर आप मरीज के नजरिए से देखोगे ना, ये प्रॉब्लम है, it is playing in the back of your mind, but who is solving it for them? तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट और उस पर नहीं खत्म होता, बल्कि हमें इंश्योर करना होता है कि जब वो जाते हैं वापस सोसाइटी में, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए उनको, और किसी चीज में कम नहीं लगना चाहिए उनको। जी, आपने एस्थेटिक्स की जो बात करी, बड़ा मेरे ख्याल से डॉक्टर अतुल इस बात से सहमत होंगे कि कई बार तो लोग पूछते हैं कि भाई मेरे बाल जाएंगे क्या, उसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर्स को कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ और दवाई दे दो कि जिससे मेरे बाल नहीं जाए। वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि
जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि कई सारे मिथ्स हैं, तो कई मिथ्स में एक दो मिथ्स ये होते हैं कि एक तो कई सारे पेशेंट स्पेशली जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब टेस्ट बहुत लिखते हैं, हमारा ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं हुआ, अभी हम आ गए हैं, हमारा तो 15 दिन से यही करा रहे हैं वही करा रहे हैं। वो चीजें नहीं हो पाती हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है, एक ये मिथ होता है। एंड दूसरा जो होता है वो आज बड़ी सारी अड़चन जो है वो क्रिएट कर रखी है इस तंत्र ने, गूगल ने, जो कई बार इंफॉर्मेशन कम और मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपने कुछ टाइप कर लिया तो ऐसा लगता है कि, मतलब मैंने मान लीजिए कि अगर कुछ सिम्टम्स टाइप कर लिया तो ऐसा लगता है कि अगली मौत मेरी होनी है, मतलब इस लेवल तक वो लेकर जाता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, ये तो दो काफी कॉमन चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं क्लिनिक में कि जांच बहुत सारी है, और जांच के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ जांच है, कुछ जांचों में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं भी हूं अगर मरीज, तो मैं भी चाहूंगा आज हॉस्पिटल गए और आज के आज इलाज शुरू हो जाना चाहिए। तो वो एक आप उम्मीद से जाते हो कि लग रहा है कि आज तो अब इलाज शुरू हो जाना चाहिए, हो सके तो आज ही एडमिट करके सर्जरी कर ली जाए या जो भी इलाज करना है। बट होता क्या है कि स्टेज वाइज इलाज थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। जैसा हमने पहले बात की कि बायोप्सी बहुत जरूरी है, बहुत अहम रहती है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है कि एक बीमारी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, है ना। कि जो कॉमन हम वर्ड सुनते रहते होंगे, जैसे आपने ही मेंशन किया शुरू में, ट्रिपल नेगेटिव हो गया, हार्मोन पॉजिटिव हो गया, HER2, ये तो कॉमन 3 तरह के कैंसर है ही। अब उसमें भी अर्ली स्टेज हो गया, लोकली एडवांस्ड हो गया, मेटास्टेटिक हो गया, मतलब 3 3 9 तो यही हो गए। अब अलग अलग इन सबका इलाज थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। कहीं पे टारगेट थेरेपी चाहिए, कहीं पे हार्मोन थेरेपी चाहिए, कहीं पे कुछ इम्यूनोथेरेपी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम सोच रहे हैं कि हम इलाज जो है वो ऐसा कर पाए कि जिससे हमारा बेहतर से बेहतर आउटकम हो, तो ये सारी जांचें तो करना अहम रहता है। कि बायोप्सी में हम सारे मार्कर्स देख लें, CT स्कैन या पेट स्कैन की ज़रूरत है देखने के लिए कि कहीं बीमारी हड्डियों में या लिवर में या लंग्स में कहीं फैल तो नहीं गई है। तो उसके लिए ये जांचें ज़रूरी रहती हैं। तो रहते हैं ये मिथ्स, थोड़े मिथ्स हम सब में कॉमन होते हैं। हम जब बचपन में मैच देखते थे, वो सचिन तेंदुलकर अगर मार रहा होता था, हम तो उठते ही नहीं थे अगर एक चेयर पे बैठे हैं ना, तो मतलब बस सब तो वहीं खाना खाना है, वहीं सब कुछ होगा। तो वो रहता है, सबके अपने थोड़े सुपरस्टिशंस होते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान काफी सारे मिथ्स रहते हैं चीजों के, क्या खाया जाए। ये तो बहुत कॉमन है कि हमें शुगर खानी है, हमें दूध लेना है, हमें दही लेनी है। हम कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कोई कीटो के लिए आके पूछ रहे हैं, बहुत तरह के अलग अलग तरह के, कोई पीपल के, वो नीम के पत्ते खा रहा है, कोई वो पपीते वाला कर रहे हैं। तो है, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअली 1 on 1 बेसिस पे हो पाती हैं। और अल्टीमेटली रहता है कि कुछ बिलीफ्स में जहां तक हमें लगता है कि हार्मफुल नहीं रहते हैं, मेरी जनरली टेंडेंसी रहती है कि जहाँ पे अगर कोई हार्म कॉज नहीं हो रहा है, तो इट इज ओके टू गो विद दोज कल्चरल बिलीव्स, है ना। कुछ चीजों में है जो बिल्कुल ही गलत होते हैं, जैसे कि अब बायोप्सी ही नहीं करनी है, उसके बिना तो अब आगे इलाज ही आपका ठीक से नहीं हो पाएगा, तो वहां तो कोई वो है नहीं। बट कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें मिला जुला के आगे करके बढ़ते हैं, तो जाके इलाज पूरा अच्छे से हो पाता है। बाकी पूरी जर्नी रहती है फ्रॉम, मतलब आप देखो कि नॉर्मल कोई इलाज के लिए आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो 1 या 2 विजिट में खत्म हो जाते हैं। अब कैंसर का इलाज ऐसा रहता है कि वो तो लाइफ टाइम की साझेदारी है आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। आप पहले दिन आए और आप सालों साल आते रहते हो, तो इट इज लाइक, मतलब कि आप शुरू में हर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर महीना, 6 महीना, साल, तो ऐसे करके आपका एक बहुत लंबा रिलेशनशिप ही होता है। मतलब ये सारी हमारी फैमिली बन जाती है, हमारे सारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स की, पेशेंट्स की, और दिन ब दिन वो बढ़ती ही जाती है। तो वो सारे हमें साथ साथ लेके चलते हैं ये सारी चीजें, है ना। और एक आउटराइट डिजेक्शन मुझे लगता है कि किसी भी चीज पे नहीं करना चाहिए। कुछ बिलीव्स हमारे कल्चर में हैं, वो उनको उन एक तरीके से ही हमें उसका लेके चलना चाहिए आगे, कि कुछ चीजें कर सकते हैं, वो ठीक है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। और एक्चुअली इंश्योरेंस एक ऐसा गहन मुद्दा है। आई वांटेड टू हैव सर्टेन क्वेरीज टू बी एड्रेस्ड बाय मिस्टर राजेश जी, आप हैं क्या? I think he was having some important meeting and he apologized to skip for this. But अभी now like देखिए, 1 घंटे में या 2 4 घंटे में या एक दिन में ब्रेस्ट कैंसर इतना बड़ा जो मुद्दा है, इसको तो शायद एड्रेस करना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन के बराबर है। लेकिन आज हमने जो भी बात करी, एक एक क्रक्स एक निकलना चाहिए कि भाई अगर लाइक माइंडेड लोग साथ में आते हैं
तो क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम मूव करें? भाई अगर सबका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ पेशेंट है, सबका ऑब्जेक्टिव साथ में जो है इस बीमारी को दूर करना है या इससे निजात पाना है या इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है लोगों की लाइफ में, तो वो एक एक क्या वो चीजें हैं जो जैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? लाइक इंदिरा मैम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और मैम एक आई वुड लाइक टू वैलिडेट इट विद यू, आई डोंट नो कितना सच है, क्योंकि वी एज एन एनजीओ जब भी हम लोगों के पास जाते हैं डोनेशन वगैरह के लिए, हम बोलते हैं कि भाई स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दीजिए, तो दे डू नॉट कम फॉरवर्ड। दे वो बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट रहेगा, किसी का ट्रीटमेंट रहेगा तो बताना। ये एक बड़ा चैलेंज है जो आई पर्सनली फेस। आई डोंट नो कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। सो एक एक चीजें, मतलब आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पैनलिस्ट टू काइंड ऑफ गिव वन डायरेक्शन, वन सेट ऑफ डायरेक्शंस टू ऑल ऑफ अस, and we all come together and kind of move further in this direction. इसी ऐसे है कि मुश्किल बहुत है, पैसा इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि सरकार तो कोई एनजीओ, जो कैंसर के एनजीओ, कोई पैसा नहीं देती है उनको। यही सिर्फ होता है कि अब इनकम टैक्स जो है उसमें जो रिबेट मिल जाती है, अगर हमारे पास वो है तो लोग फिर भी देना पसंद करते हैं। तो अभी इंडियन कैंसर सोसाइटी में 50% आपको मिलता है। तो वी हैव डिफिकल्टी बट वी आर एबल टू गेट। एंड यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे जान पहचान के हैं, जो हमको जानते हैं, एक तो उनको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, तभी लोग आपको पैसा देंगे। ऐसे आप किसी के, आप तो CSR में भी पैसा मिल रहा है, कॉर्पोरेट्स भी दे रहे हैं। और इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा, I'm not a pessimist. I always feel that if people are approached properly, and if you can tell them after the patient you have helped a patient, उसके बारे में उनका फीडबैक उनको दीजिए कि हमने ये पेशेंट को लिया था, उसकी अब ये हालत है, उस पे हमने इतना पैसा खर्च किया। तो फीडबैक देने से ये होता है कि वो किसी और को भी बोल सकते हैं, अपने जान पहचान वाले को, कि आप इनको पैसा दीजिए। अगर देयर इज अ क्लैरिटी, everything is clear, money will come though with great difficulty, पर पैसा आता है। और हम तो काफी पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसे हमने, अभी तक हमने 8,000 पेशेंट्स को, जब से हमने हुआ है, पेशेंट्स को हमने हेल्प किया है। तो वो कहाँ से आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है, और CSR से आ रहा है। मुश्किल है, क्योंकि मैं तो ये देख रही हूँ कि जो NGOs हैं उनको बहुत मुश्किल, एक तो पैसे की और एक वॉलंटियर्स की। People are not coming forward to volunteer or work with the NGOs. क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब उनके पास टाइम होता है, पीपल रिटायर, उसके बाद आते हैं, या फिर जो ऐसी हैं जिनको टच किया है कैंसर ने, वो आते हैं। अब जो आते हैं वो तो बूढ़े, हमारे जैसे अब एज में बूढ़े होते जाएंगे, विल गो, क्योंकि वो बर्न आउट स्टेज हो जाती है। फिजिकली हम काम नहीं कर सकते, इमोशनली हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये दो जो प्रॉब्लम्स है, मनी एज वेल एज वॉलंटियर्स, इट्स अ रियल कर्स फॉर ऑल द, आई थिंक, कैंसर दिस NGOs। बहुत मुश्किल है जी। एंड आई कंप्लीटली रिलेट विद यू। एंड प्रॉब्ली एक ये मुद्दा या एक ट्रिगर जो है, प्रॉब्ली मैंने ये सीखा है आपसे कि इन दो चीज़ों पे और ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत है और लोगों तक कनेक्ट करने की जरूरत है। आई वुड कम टू डॉक्टर गीता। डॉक्टर साहब, व्हाट इज योर टेक, लाइक जैसे आपने कोलिशन की बात करी, तो हाउ वी कैन, हाउ वी एज अ सोसाइटी, हाउ वी एज ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड मूव इन दिस डायरेक्शन? मैं यहाँ पे एक बात कह सकती हूँ? जी जी प्लीज। मैंने ये देखा कि हम जिस अस्पताल में जाते हैं, दे आर सो सपोर्टिव। हम कोई 13 अस्पताल NCR और मतलब दिल्ली में हम कवर करते हैं। The doctors are so supportive, and I think that is one thing on the basis of which we are able to work. तो आप डॉक्टर गीता से पूछ रहे थे, अब उनसे पूछे कि हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर गीता, यू आर अवेलेबल, और वी मूव टू डॉक्टर अतुल बत्रा। डॉक्टर साहब, what would be one sorry, thing? I missed the question. जी. So, the idea is to kind of take one key take away from here, and we at least जितने लोग हम connected हैं, वो सारे के सारे मिलकर एक बड़ा community बनाएं, बड़ा एक support group बनाएं या support system बनाएं rather than group,
एंड सो आज आपको क्या लगता है कि लाइक वो एक क्या चीज होगी, क्योंकि आपने कोलिशन की बात करी एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट में हो रहा है, वी आर सेल्व्स आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ब्लैडर कैंसर कोलिशन एंड वी सी दैट काइंड ऑफ इंटरचेंजेस and everything in that domain. So with respect to breast cancer, what do you think that one point we should take? मेरे को लगता है कि ना कि I may not have necessarily have the best idea. And when a lot of heads put together, you can have a lot of ideas. So it is a multiplier effect. तो मुझे लगता है कि जितने भी आपके ये जो we have to somewhere, I think, we have to set our egos aside. जहां मैंने सोचा ना कि मेरे को ये चलाना है और मेरे नाम से ये चलना चाहिए, तो फिर वो काम होता नहीं है. So you have to set your egos aside and get all these. So we have some wonderful organizations up and running already. They have done a brilliant job. पर मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं की तरह से अगर 10 लोग, there could be people who are leading those organizations, or there could be a second lead in those organization, and they can all come together on a common platform. Somebody has to drive it. It could be somebody like you, Vivek, who could be driving it, because we as clinicians have our limitations. I would definitely love to see. I am a co-founder of a NGO as well, but I have मेरा सा उसमें ना intellectual contribution है, but there is somebody who has to do a lot of leg work. So the intellectual this thing is also important. Input is important, but the leg work is also important. So you have to figure out who are the people who are going to put in the legwork, who are the ones who are going to be the advisory, who's going to do what. And if you can get the top 10 leaders of each of these organizations on a single boardroom kind of a table, and then figure out, are they happy to go ahead and, put this coalition together? It can happen. It will happen. And if it can happen in a country like Philippines, I don't see a reason why it should not happen in our country. और आप सोचिए ना, क्योंकि कई लोग जो है हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं एफर्ट्स, पर वो it is like throwing आप डार्ट्स डाल तो रहे हो, पर वो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता. पर अगर हम लोग इतने सारे लोग मिलके एक चीज बड़े स्केल पे करेंगे, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. So that's what I think needs to be done. And I am in complete agreement with you, Dr. Saab. And with this, I move to Dr. Atul Batra. Dr. साहब, क्या लगता है आपको कि आज के इस डिस्कशन से एक पॉइंट जो है वो हमको आगे लेकर चलना चाहिए? Because I'm making note of it and I'll be working on it. This discussion is not just for the sake of discussing. And I'm sure like हम सारे के सारे सीरियस हैं इस बारे में, इसके लिए हम साथ आए हैं आज शाम. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक तो ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स कि ये हो सकता है. अगर जिस दिन हमने सोचा कि जब तक हम सोचते रहेंगे यार बहुत बड़ी कंट्री है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो समझो वैसे ही नहीं होगा. पहली चीज तो ये हो सकता है. वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स. फिर जब कोविड स्टार्ट हुआ था, हु थॉट कि हमारे पास इतने सालों में इतनी सारी वैक्सीन डेवलप हो जाएंगी. एवरीवन सेड कि नहीं हो सकती इतनी जल्दी. कौन मानने को तैयार था? इंडिया अपनी वैक्सीन बना लेगा. हु वाज रेडी टू बिलीव दिस? हाँ, फाइजर की वैक्सीन या जो मॉडर्ना बनी या इंडिया से बनी, मतलब नाउ वी आर ओवर इट. बट ओनली थिंग इज वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज राइट. जिस दिन हमने वॉर डिक्लेयर कर दिया ना कि हमें ब्रेस्ट कैंसर पे एक वॉर जारी करना है, ये छोटे छोटे बैटल्स इधर उधर लड़ने से चलते ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना. जिस दिन सब इकट्ठे एकजुट हो गए और हमने बोल दिया कि भैया करना है, वो हो जाए. Awesome. Thank you, Dr. Saab. And I move to Dr. Ishan. Dr. Saab, क्या लगता है आपको कि what is that one point from here, from industry perspective or rather pharma perspective, that we should take away and kind of leverage on that? Yeah. So Vivek ji, I think one most important point here is collaboration, right? Dr. Geeta Madam also said we all are doing at our different capacity, right? And at a pharma level, at a Pfizer, we have moved beyond even physicians. So फिजिशियन के साथ हम बहुत सारी चीजें करते हैं. एजुकेशन हो गया, रिसर्च एक्टिविटी हो गया. वी आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम दैट, बट वी हैव एडेड अवर स्टेक होल्डर्स, right? So we also want to partner with patients. We also want to partner with patient advocacy group. We want to partner with the policymakers. It's not that we want to influence the decision, but we also want to put our points. We are open for more collaboration. Jab tak, when everybody come together,
कोलैबोरेशन करेंगे, सब साथ में आएंगे rather than doing like an isolated thing, I think that would be the way forward. And I really like डॉक्टर अतुल सर ने बोला कि वॉर, मतलब we need to declare the war, और अगर हम करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे, वी इंडियन, वी नो, एक बार ठान लिया है तो वी विल गेट इट डन, मतलब ऐसा है. तो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर. आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म. Like you invited like a different people on a one platform to have a discussion. So I think collaboration, I would say it's a takeaway from this discussion. Great. Thank you, Dr. Saab. Now let me ask Urvashi ji, what is that? Because मैं आपसे ना public private partnership पे आपकी तवज्जो चाहूंगा, and I would request like if you can give us some direction that how we can consolidate it further and kind of make it even bigger. हाँ विवेक जी, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे तो खैर मतलब बहुत से एरियाज हैं जिन पे काम किया जा सकता है, और मैंने वो टेक्नोलॉजी की भी बात की, मैंने नए ट्रीटमेंट्स की भी बात की, इन सब पे हो सकता है. बट आई थिंक वन एरिया जो मैं आपसे चर्चा करती हूँ काफी ऑफलाइन, दैट आई वुड वांट टू हाईलाइट इज द होल एरिया ऑफ साइको ऑन्कोलॉजी, क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत हमारे यहाँ निग्लेक्टेड और है. और मैं खुद एज अ पेशेंट ये एक्सपीरियंस अपने से बता रही हूँ कि मतलब पॉजिटिविटी तो सब वेल एंड गुड है, लेकिन जब आपकी मतलब पूरी लाइफ अपसाइड डाउन टर्नर हो जाए, जो कई बार कैंसर से होती है, और आपके सारे रिलेशनशिप्स में इश्यूज हों, आपकी पूरी लाइफ फंडामेंटली कितनी फर्क हो जाती है. एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर पीपल जिनका लॉन्गर टर्म इलाज है या उनको लॉन्गर टर्म कैंसर के साथ जीना है, मेटास्टैटिक है, स्टेज 4 है. पीपल लाइक मी who have to live till whatever time we live, we have to live with the disease. And I think it's very we can't undermine the psychological, psychosocial impact of the disease on your life, while we want to be positive and we want to say ki haan treatments hain, people are living longer, but I equally feel that we can't undermine the other side of things. So I think wo hamari society mein abhi bahut kam us pe charcha hai, and I would really hope and wish कि आप अपने और इस तरह के प्लेटफॉर्म से को भी बढ़ाएं कि how do we as a society, because now cancer is unfortunately not something which only a small number of people are affected by or going to be affected by. I mean, many estimates, studies suggest that your lifetime risk is now up to 50%, that you so all of us will either we get it ourselves or we will know someone close who gets it. तो ये उस तरह की डिजीज हो गई है. So we need a very much a broader societal engagement as well. And if I look at it technically, then this whole issue of psycho-oncology, we really need to, because kai baar oncologists themselves, they are not always equipped to handle these issues. I mean, I know that my oncologist was not equipped to handle this issue. And he said so himself, because I was in acute and severe depression and anxiety and suicidal ideation. I mean, that's why I speak so openly about these things, because I feel we need to speak openly about these things, and we can't brush them under the carpet. So I think मैं यही कहूंगी कि yes, we can be positive, we can talk positive things, but let's not, brush aside people, the massive psychosocial stress, psychological impact of this disease, apart from financial impact, various other types of impact जो इस disease का होता है. तो उस पे भी I think अगर एक conversation होगा, broader societal conversation होगा, doctors में होगा, तो it will be oncologists में होगा, तो it will be really, I think, beneficial. Saying, purely from a patient perspective, not really as a policy person or somebody who's sitting in the government, but I'm saying it really as a patient myself, that, I feel that this is a dire need in our country. Absolutely, and very well said, Urvashi ji. And just to like what vision that we have got, like to create a safe space for cancer patients and caregiver in India. So that space पे हम थोड़ा काम करते हैं, and I'll personally be in touch with all of you, and we'll keep working, and we'll do more as much as we can. And
thank you so much, all the panelists for being, so cohesive and so cordial this evening, and we really brainstormed well, and I'll take this forward. That's a promise from my side. Thank you so much. Thank you so much, Thank you everyone. very much. Thank you. Thank Thank you. you, everyone. Very, very educative. Thank you so Thank much. you.